So what you have to do is, there is a editor which is known as gedit. There is an editor which is known as gedit. This is the name of the editor, and you have to write the name of the file followed by either the C extension if you are making a C file, or C plus CPP in case if you are making a C++ file, CPP dot C or dot CPP. For example, I'm just showing you the C file which I have created for you for the demo purpose. This is the interface for the gedit. It is much more easier than using a VI editor. So that is the reason I've specifically chosen for making your C or C++ program. I'm giving you this flexibility to make the program either in C or C++, right? So in whatever language you feel comfortable, you can make your programs. So today's objective is you should be able to develop at least 3 to 4 small programs in the Ubuntu environment for the C++ language. Maybe you can go for factorial, Fibonacci, and sum of n natural numbers. These 3 programs only: factorial, Fibonacci, and sum of n natural numbers. So this is just a demo program. So this is simply the code of C program which I have written here. I'm just closing this. So the command to compile the C program is cc C compiler, then name of the file first dot C. मैंने gedit यूज किया. gedit में यूज करने के बाद मैंने एक फाइल का नाम दे दिया. अभी आपके पास फाइल क्रिएटेड थी तो आप फाइल के कंटेंट को देख रहे थे. अगर आपकी फाइल क्रिएटेड नहीं होगी, फॉर एग्जांपल मैं second.c बनाती हूँ, तो देयर यू कैन टाइप द कंटेंट ऑफ द फाइल जो भी आपको टाइप करना होगा. आप सिंपल अपनी फाइल को सेव कर देंगे और फाइल आपकी उस नाम से सेव हो जाएगी. कंपाइल करने के लिए आपको क्या करना है, cc फर्स्ट डॉट सी, जो भी आपने फाइल का नाम दिया हुआ है. वन मेथड इज दिस. आप कंपाइल कर लेंगे और कंपाइल करने के बाद द एग्जीक्यूटेबल कोड is stored in a file by the name of a.out. I'm repeating myself. Once the C program is compiled, the executable code is stored, or I can say the object file is stored in the name by the name of a.out. मैम ये सी कोड के लिए है ना? आप C++ के लिए भी बेटा ये यूज कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज द अनदर कमांड इज GCC, जेन्युइन सी कंपाइलर. ठीक है. Either you can cc followed by the name of the file by the dot extension of either C or CPP, or you can use GCC. I have given the instructions in the classwork also. जो आपका मैंने अपलोड किया है असाइनमेंट, वहां पर भी मैंने इंस्ट्रक्शंस जो है वो मार्क करी हुई है. This is the file, but you have to give the path for running this particular file. What I'm writing is dot slash. Can you see? Dot slash. डॉट स्लैश मीन्स डॉट मीन्स करंट डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है बाय द नेम ऑफ a.out. दिस इज बेसिकली द पाथ आई एम गिविंग. यूनिक्स में हम पाथ कैसे दे रहे थे, अगर आपको याद हो तो हम ऐसे ही तो देते थे ना. रूट के होम में दीपाली की एक लॉगिन डायरेक्टरी है, उसके अंदर मैंने D1 बनाई थी. D1 के अंदर लेट्स से मैंने फाइल 1 बनाई थी. सो मैं कौन से स्लैशेस दे रही हूँ, मैं बैकवर्ड स्लैशेस दे के फॉरवर्ड स्लैशेस दे के मैं अपना पाथ जो था वो स्पेसिफाई कर रही थी. दिस इज द सेम वे. यहाँ पर डॉट स्लैश का मतलब क्या है, डॉट ऑलवेज स्टैंड्स फॉर करंट डायरेक्टरी. डबल डॉट का क्या मतलब होता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, पेरेंट डायरेक्टरी. डॉट, हाँ एग्जैक्टली. सो डबल डॉट स्टैंड्स फॉर पेरेंट डायरेक्टरी, सिंगल डॉट स्टैंड्स फॉर करंट डायरेक्टरी. सो बेसिकली अगर मैं ये डॉट स्लैश दे रही हूँ, ये दो कैरेक्टर्स जो हैं वो ये बता रहे हैं करंट डायरेक्टरी के पाथ में देयर इज अ फाइल बाय द नेम ऑफ a.out, और जब मैं उसको रन करूंगी तो मेरा ये जो हेलो जो था वो प्रिंट होके आ गया. दिस वाज अ सिंपल डेमो प्रोग्राम जो मैंने बनाया हुआ था आपको दिखाने. अदर ऑप्शन कुड बी, जब आप कंपाइल करते हैं, कंपाइल करते टाइम cc first dot c, I can write -o. This is not zero minded, this is -o, o flag.
एंड आई कैन राइट द नेम ऑफ एनी फाइल, जो भी मैं दे सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ डेमो दे दिया. नाउ दिस इज द फाइल. इंस्टेड ऑफ द ऑब्जेक्ट कोड going to a dot out, it will be going to demo file now. Done. So now अगर मुझे दोबारा से अब मैं a dot out को चलाने की बजाय और उसका पाथ देने की बजाय I can only write demo. Oh, there's some problem. Okay, let me go for dot slash demo. Yes, ये आ गया. Hello. That means देखो द पॉइंट इज आपने अभी एक सी का आपने एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम चलाया, उसका ऑब्जेक्ट कोड कहाँ पे आ गया? ए डॉट आउट में. फिर आपने फिबोनाची का बनाया प्रोग्राम, उसका ऑब्जेक्ट कोड कहाँ पे आ गया? ए डॉट आउट में. इफ यू वांट टू मेंटेन द ऑब्जेक्ट कोड सेपरेटली फॉर ऑल द फाइल्स, देन यू कैन यूज द हाइफन ओ फ्लैग. Otherwise, if I am not using the hyphen O flag, every time the object code which is generated, it is overwriting in the previous a dot out file. Are you getting what I'm saying? A dot out तो आपकी एक डिफॉल्ट फाइल है जो हमेशा ही आपकी क्रिएट होती है जब आप अपना सी या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को कंपाइल करते हो. जब भी आप अपने कंपाइल करते हो विदाउट स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्ट फाइल, आपकी आउटपुट बाय डिफॉल्ट किस में चली जाती है? ए डॉट आउट में. सो अभी जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही थी, आपने सबसे पहले एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया, उसका ऑब्जेक्ट कोड कहाँ पे चला गया? ए डॉट आउट में. फिर तो आपने फिबोनाची का कंपाइल किया, उसका ऑब्जेक्ट कोड फिर से कहाँ पे ओवरराइट हो गया? ए डॉट आउट में. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स अगर आप फैक्टोरियल का कभी ऑब्जेक्ट कोड को रेफर करना चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले उसको दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा, तब जाके आप उसके ऑब्जेक्ट कोड को यूज कर सकते हो. इफ आई डोंट वांट टू रिकंपाइल माय प्रोग्राम एवरी टाइम, आई कैन क्रिएट अ सेपरेट ऑब्जेक्ट कोड फाइल by using the flag -o followed by the name of the file in which I want the object code to be created. Is it okay or not? Ma'am, for new file, we are using hyphen O. Every time you are compiling, and if you want the object file to remain a separate file rather than a dot out, you should use hyphen o flag. Otherwise हाइफन ओ आप नहीं देंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट कोड जो है वो प्रीवियस ए डॉट आउट के कंटेंट को ओवरराइट कर देगा. If I am clear or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आज की क्लास जो है इट्स हार्डली गोइंग टू बी हाफ एन आवर क्लास फॉर यू, बिकॉज आज की क्लास के अंदर हमारी सिर्फ रिक्वायरमेंट इतनी है कि यू शुड बी फेमिलियर विद compiling and executing a C++ program in the Linux environment. So for that gedit आप यूज करेंगे. gedit for example मैं second.c यूज करती हूँ. मैंने अपना C का खोला एंड इट इज रेडी टू यूज. जैसे फॉर एग्जाम्पल VI एडिटर के अंदर मैंने आपको बताया था ना, पहले आपको इंसर्ट प्रेस करना पड़ेगा, एग्जिट करते टाइम कॉलन WQ प्रेस करना पड़ेगा. नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट यू नीड टू डू इन gedit. इट इज सिंपली स्टार्ट अपना यहाँ से स्टार्ट टाइपिंग फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, दैट्स इट. और कुछ नहीं करना. और जब आपको सेव करना हो यू कैन सिंपली प्रेस दिस सेव बटन एंड देन एग्जिट, दैट्स इट. ऑब्वियसली जब मैं इसको कंपाइल, इंसर्ट मोड की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना बेटा. इट इज जस्ट सेम एज योर टेक्स्ट एडिटर. जो आपका टेक्स्ट एडिटर आपने विंडोज के लिए यूज करते हो नोटपैड, इट इज एज गुड एज दैट. कुछ भी नहीं करना आपने. ठीक है, gedit को यूज करोगे. इसको मैं कंपाइल करूंगी तो ऑब्वियसली ये मुझे एरर देगा, क्योंकि सी कंपाइलर है तो ये एक्सपेक्ट करता है कि फर्स्ट लाइन जो है वो हैश इंक्लूड से स्टार्ट हो. इसको फर्स्ट लाइन में हैश इंक्लूड नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली इट विल थ्रो एन एरर. बट अगर आप सिंपल गूगल भी करोगे तो आपको बहुत सारे C++ के प्रोग्राम्स, रेडी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जो कि आप यूज कर सकते होगे इसके अंदर डायरेक्टली यूज करने के लिए. ठीक है. सो माय ऑब्जेक्टिव इज आपको आज की क्लास के बाद क्या अपलोड करना है. यू विल अपलोड योर 3 programs
written in C++, उनको कंपाइलेशन दिखाना है और उसका एग्जीक्यूशन दिखाना है आपको लाइनक्स के एनवायरनमेंट में। कंपाइलेशन की कमांड भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और एग्जीक्यूशन की कमांड जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। These are the commands for the compilation, और अगर आपने रन करना है तो उसकी कमांड भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, Okay, ma'am. ओके चलो दैट्स इट। मैम GCC CC एक ही बात है मतलब? सीसी भी यूज कर सकते हो बच्चे, आप जीसीसी भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज सीसी ऑल्सो, यू कैन यूज जीसीसी ऑल्सो। यहाँ पे आपका प्रोग्राम का सोर्स कोड .c वाली फाइल -o और सिंपल जो आप अपनी फाइल जो एग्जीक्यूटेबल फाइल आप बनाना चाहते हो, ऑब्जेक्ट फाइल बनाना चाहते हो। एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ .c फाइल, दिस इज नॉट अ .c और cpp फाइल बिकॉज इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड स्टैंड्स फॉर द मशीन कोड। मैम स्नैपशॉट लेकर के डालना है। हाँ, स्नैपशॉट लेके डालना है ताकि मुझे पता चले आपने इंडिविजुअल से कर लिया। एंड हाउ दो स्टूडेंट्स जिनके भी वीएमई रेडी नहीं है वो कैसे करेंगे ये वाला पार्ट? मैम थ्रू ऑनलाइन टर्मिनल। अच्छा, ऑनलाइन टर्मिनल से मेरा पर्पस शायद इतना सर्व नहीं होगा क्योंकि तुम्हें C++ में फैक्टोरियल फिबोनाची तो बनाना आते ही है। या अच्छा, तो ऑनलाइन टर्मिनल यूनिक्स का ऑनलाइन टर्मिनल की बात कर रहे हो? ठीक है, दैट विल आल्सो सफाइस फॉर Yes, मी। ma'am. हाँ, दैट विल आल्सो वर्क फॉर मी, मेरे लिए काम चल जाएगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मैम जो वर्चुअल मशीन का जो हमें स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हैं, जैसे वो मशीन हमने बना लिया है तो अब हम उसके पिछले स्टेप पे तो जाके वो नहीं दिखा सकते ना कि कितनी मेमोरी एलोकेट करी और कैसे किया। आप मैनुअली स्टेप्स लिख दीजिए बेटा बस। ओके, तो हम स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट सिर्फ फाइनल मशीन जो आ गई है उसका डाल दीजिएगा। ओके मैम। बेटा दिस इज ओनली टू इंश्योर कि सब बच्चों का वीएम क्रिएट हो जाए क्योंकि सब्सिक्वेंट प्रैक्टिकल्स हमें वीएम पे ही करने पड़ेंगे। ओके मैम। ओके, लेट मी टेक योर अटेंडेंस। यस मैम।